So policies are never fixed. They evolve and they are taken in the context of the prevailing situation. Thank you, sir. آپ سر نوید آج نیوز سے میرا سر سوال تھوڑا سا آپ نے فارن پالیسی کو تھوڑی سی وضاحت کی فارن پالیسی کو کیسے کرنا ہے کافی حد تک رپورٹرز اس کو سمجھتے بھی جو فارن پالیسی کو کور کرتے میرا سوال یہ ہے کہ رپورٹنگ کیسے کی جائے جو ہمارے ورک شاپ کا ایک بھی ہے میڈیا رپورٹنگ اور نیشنل سیکورٹی ایشوز ابھی جو ڈپلومیٹک کیبل کا ایشو سامنے آیا تھا جو ڈونلڈ لو والی ساری جو ڈسکشن ہوئی ہمارے امبیسڈر کے ساتھ اور اس طرح کے ایشوز کو کیسے رپورٹ کیا جائے یہاں پہ نیشنل سیکورٹی کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں کیونکہ ایک پرائم منسٹر ہے ایک ڈپلومیٹک جو میرے ایز اے ڈپلومیٹک رپورٹر میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو سائفر میسیجز ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو کیبلز ہوتی ہیں وہ ایک سیکرٹ ہوتا ہے ان کو پبلک ڈومین میں لانا جو ہے وہ ویسے ہی غلط ہے آپ اس سارے ایشوز کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ رپورٹنگ میں یہی چیز ہے کہ ہم اس کو کیسے رپورٹ کریں رپورٹنگ کا فنڈامنٹل جو کرائٹیریا ہے کہ it should be objective and factual. So one should wait for the version of the government spokesman. تو جو وہ کہے اس کو پھر کسی اور طریقے سے آپ ویریفائی کریں چیک کریں اینڈ دین یو رپورٹ. کیونکہ ٹھیک ہے سیکرٹ ہے لیکن میڈیا کا بھی یہ کام ہے ٹو فائنڈ behind what is not open. So یہ نئی بات نہیں ہے کہ ایمبیسیز اور گورنمنٹ کے ڈیلی کمیونیکیشن ہوتی ہے فرام ایوری ایمبیسی which is some are coded some are not coded. اور جو کوڈڈ چیزیں ہیں جو سائفر میں ہیں اس کو unnecessarily اوپن نہیں کیا جاتا ہے. اگر کیا بھی جائے تو وہ بالکل انٹرپریٹیشن کے ساتھ نہیں بلکہ فیکچولی جو کچھ. سر دس از عدنان حیدر فرام پبلک نیوز. سر مجھے پتا ہے کہ ملک کبھی بھی لیبارٹری نہیں ہوتا کہ ہم تجربات کریں. آف کورس پاکستان 22 کروڑ سے زیادہ کا ملک ہے. آپ نے سر ہم ہر کوئی کہتا ہے کہ انڈیا ہمارے لیے ایک چیلنجنگ پوزیشن پہ ہے فار اوور فارن پالیسی. سر مجھے ذرا آپ بتائیے گا یو آر سینئر ڈپلومیٹ وین یو کمپیئر دا ایکسٹرنل منسٹر آف انڈیا جے شنکر ود دا پاکستانی فارن منسٹر بلاول بھٹو ویئر وی اسٹینڈ ان دا کریٹیکل سچویشن رائٹ ناؤ. اور سر دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر ایک ڈی جی رینجر ایک ایمبیسڈر اپوائنٹ ہو سکتا ہے تو پھر ایک ڈی جی سوائل سائنٹسٹ کسی ایسے ملک کے ساتھ یا ڈی جی پیسٹی سائڈز کیوں نہیں ہو سکتا جہاں جس ملک کے ساتھ ہمارے ایگریکلچر بیسڈ ریلیشن شپ ہوں. سر I don't want to go into personalities, لیکن as I said in the beginning کہ یہ کنٹری کی اپنی جو اسٹرینتھ ہے which matters کون اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ ہے to some extent is relevant but لیکن آپ دیکھیں ملک ہیں جن کی جو بولتے ہیں ان کو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہتے کیا ہیں. لیکن یہ کنٹری کی اپنی اسٹرینتھ سے ہوتی ہے کہ اس کو کتنی امپورٹنس ملتی ہے چیز کو. اور رشین جو ہیں وہ بول رہے ہیں رشین میں بولتے ہیں کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی کیا ہے. لیکن اٹ از ناٹ دیٹ مین یہ کنٹری بیہائنڈ ہے جو اس کی امپورٹنس دیتا ہے. تو یہ کمپیئر کرنا کہ بلاول اور وہ اگر پاکستان اسٹرانگ ہوگا ملک تو بلاول کیا کہ ایک نان اینٹی کو بھی آپ اسپوکس مین یا فارن منسٹر بنا دیں تو پیپل وڈ لسن ٹو ہم. سو یہ اسٹائل کا تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے یہ نہیں میں کہتا نہیں فرق پڑتا بٹ اٹ از ناٹ دیٹ مٹیریل اٹ از دا انہرنٹ اسٹرینتھ آف دا کنٹری وچ میٹرز اور اس کی امپورٹنس ان اے گیون ملین. دوسرا سب پارٹ نہیں میں سمجھا کوشچن کا. یہ پاکستان ہی نہیں یہ تمام دنیا میں ہے. ایون ہو بھی سکتا ہے کیوں نہیں. یہ تو پولیٹیکل ڈیسیشن ہے نا. اول تو فارن آفس تو خلاف ہوگا اس کے وہ کہیں گے کوئی بھی باہر کا نہ لگے. ہنا
Assalamu alaikum, sir. I'll not talk about the relationship and the ties and regional connectivity of the countries among themselves. Being a humble student of international relation, I just want to educate myself and this my colleague sitting right here, right now, क्योंकि वो जो सवाल पूछा कि कैसे रिपोर्टिंग की जाए, तो उससे रिलेटेड है. What should be the top priority for Pakistan and for any country? पहले हम country wise देख लेते हैं, globally, not for Pakistan individually. हम top priorities में बात ये कर रही हूँ कि national security, national integrity और economic interest of the nation. और in terms of पाकिस्तान, एक सवाल तो ये कि पाकिस्तान के लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए. पहले हम प्रायोरिटाइज कर लेते हैं चीज़ों को, उसके बाद हम उस पर वर्क करते हैं. सेकेंडली, पाकिस्तान की बात करें स्पेसिफिकली, इन विच एरा हम ये कह सकते हैं कि यू specifically your own experience and profession related to this field, where you will appreciate Pakistan's foreign policy in which era? Okay, we should admit amongst ourselves कि पाकिस्तान का इमेज दुनिया में वो नहीं जो होना चाहिए. तो उसमें कुछ सदाकत भी है, कुछ सदाकत नहीं है, कुछ प्रोपेगेंडा भी है. तो हमें जो रिपोर्टिंग करनी है वो उन इश्यूज पे जिन पे पाकिस्तान उन वीक पॉइंट है उसको डिफेंड करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए. अब देखें, काफ़ी अरसे से ये चला आ रहा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट हेवन है. इसमें कहाँ तक सदाकत है नहीं है, लेकिन ऑल्सो देयर अदर साइड कि पाकिस्तान ने कितनी सेक्रीफाइसेस की हैं टू काउंटर दिस मेनेसिंग. तो एक तो ये हमारा इमेज जो है इसको ठीक करने की जरूरत है, एंड वी हैव सक्सीडेड टू सर्टेन एक्सटेंट बट नॉट कंप्लीटली. रीजन बीइंग कि देयर इज अदर कंट्री जो मच बिगर है, बेटर रिसोर्सेज हैं, जो कि डार्लिंग है ऑफ द वेस्ट नाउ और देयर ओन पॉलिसीज, वो पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक यही कहता है कि ये टेररिस्ट कंट्री है. दूसरा ये कि इंटॉलरेंस कि क्या ये सोसाइटी वाकई इंटॉलरेंट है, ये भी एक इमेज है, उसका भी कोई बेसिस है. क्योंकि आए दिन कोई ना कोई इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ एथनिक या रिलीजियस सेक्टेरियन ये सारे. तो ये नहीं कि दूसरे मुल्कों में नहीं होता, लेकिन people gloss over their failings for some other reasons. लेकिन हमें इस चीज में भी जो प्रमोट हमारे जो सूफी फिलॉसफी है उसको थोड़ा सा ज्यादा इसकी तशहीर होनी चाहिए कि ये टॉलरेंट सोसाइटी है. कि बट अगेन फैक्ट्स इफ आर डिफरेंट फ्रॉम दिस, इट इज डिफिकल्ट टू सेल योर स्टोरी. ये एक हमारा वीक है. तीसरा, हमें जो हमारी जोग्राफिकल पोजीशन है जो कि रीजनल इंटीग्रेशन और कनेक्टिविटी में इट्स वेरी वाइटल प्लेस है, इसको ज़रा और उजागर करना चाहिए. और इस कॉन्टेक्स्ट में CPEC है, BRI है, और रिलेशंस विद द सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ऑल दीज थिंग्स. ये भी एक पॉजिटिव चीज़ इसको हाईलाइट करें. Anyway, you know better than me, I know. Thank you, sir. We have last two questions, लेकिन brief सा क्वेश्चन कीजिए, मुख्तसर सा. और एक क्वेश्चन यहाँ से ले लेंगे. नैयर, आप कर लीजिएगा प्लीज. सर, आपने बात की हाउसिंग ऑर्डर की, और फिर आपने कहा कि माशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम, और साथ आपने कहा हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात. ये कोइंसिडेंस हैं. जब भी हमसायों में सबसे ज्यादा बात इंडिया पे आती है, जब भी पॉलिटिकली बात शुरू की जाती है, तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या ये इत्तेफाक है कि उसी वक्त ही बॉम्बे टैक्स भी हो जाते हैं, फिर पठानकोट भी हो जाता है, फिर मामला ठीक होने लगते हैं तो आपके सामने पुलवामा हो जाता है. हाउसिंग ऑर्डर के लिए जो बाकी इदारे हैं उनकी भी तो जिम्मेदारियां बनती हैं, उनका भी तो आपको नाम लेना चाहिए कि हाउसिंग ऑर्डर के अंदर ये चीज़ें भी होनी चाहिए. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब ही आती है जब इदारे अपने अपने हदूद में काम करें. अगर अड्डों की बात हो तो किसी को निकाल दिया जाता है, मोदी बगैर बताए आ जाए
फिर उनको निकाल दिया जाता है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी जब इदारे अपने अपने हदूद में नहीं रहेंगे, वो अपना ही मुल्क समझेंगे। इस ऑब्वियस आपने जो कहा है, हर एक को अपने अपने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो रोल है वो अदा करना चाहिए। इसमें तो कोई, इफ देयर इज अ गैप बिटवीन प्रैक्टिस एंड ये जो प्रिसेप्ट है, तो वी शुड ट्राई टू ओवरकम दिस ब्रिज। प्रैक्टिस में जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुख्तलिफ अदारे काम करेंगे तो यू विल हैव बेटर रिजल्ट्स। इसमें कोई डिफर नहीं कर सकता। ये उसकी अपनी डायनामिक्स भी है इन चीज़ों की। मुख्तलिफ अदारे या सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, हर एक की अपनी वेलोसिटी होती है। तो ये जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो फिर ये चीज़ें ज़रा कोऑर्डिनेशन जो है इट बिकम्स बेटर, इम्प्रूव हो जाती है। Thank you, sir. Last comment by Salma and Nayyar, आप करें। We are running short of time. कमेंट तो नहीं करूंगी, लेकिन एक मुख्तसर सा सवाल है मेरा। हम लोग हाइब्रिड वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, साइबर वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर इस वक्त जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो मीडिया रिपोर्टिंग है। तो जब मीडिया रिपोर्टिंग करनी है और मीडिया भी मौजूद है, जो कंसर्न इदारे हैं वो भी मौजूद हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ये ऑब्जर्वेशन भी है और ये हम सब फेस करते हैं, हम जो डिप्लोमेटिक करेस्पॉन्डेंट्स हैं, डिफेंस कवर करने वाले करेस्पॉन्डेंट्स हैं, कि जब कोई इंसिडेंट होता है तो जो अथॉरिटीज हैं, जो कंसर्न्ड इदारे हैं, उनकी तरफ से बजाय इसके कि कोई प्रॉपर जवाब दे दिया जाए ताकि हमारा एक नैरेटिव बिल्डिंग जो है उसमें हम एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सके, मीडिया शट डाउन कर दिया जाता है, तमाम इंफॉर्मेशन जो है उसको बाहर नहीं आने दिया जाता। तो अगर सही तरीके से इंफॉर्मेशन बाहर आने दी जाए तो क्या बेहतर नहीं है? आपको क्या लगता है कि क्या तमाम इदारों को क्या मैकेनिज्म इख्तियार करना चाहिए कि जो एक गैप है मीडिया और उन इदारों के दरमियान में, तो वो फिल किया जा सके? Please. सर बहुत छोटा सा सवाल मेरा, कि इंडिया में भी दहशतगर्दी, फसाद, हंगामे सब कुछ होता है, उसके बावजूद हम बात करें कि पाकिस्तान के इमेज पे काम करने की जरूरत है। व्हाई स्टिल इंडिया इज द डार्लिंग ऑफ वेस्ट? व्हाई नॉट अस? हमारी बारी, हमारा पासपोर्ट मशकूक हो जाता है। नहीं, इंडिया की तो मैंने पोजीशन एक्सप्लेन की कि इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाइडर जो इस वक्त कंपटीशन है among the big parts, के United States have chosen India as its partner. Why it has chosen India as partner? It is in the context of its competition with China. So India उस चीज को exploit करता है. That's why कि वहाँ हालांकि इससे बेहतर, इससे बदतर हालात हैं minorities के साथ ये वो, लेकिन United States इतना openly critical नहीं होता. तो ये तो, और दूसरा उसकी अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कि हमारी इकोनॉमी उसके एट पार नहीं है, साइज फर्क है, उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो उनके इंटरेस्ट इकोनॉमिक भी आपस में ज़्यादा म्यूचुअली बेनिफिशियल है. तो ये तो डिपेंड करता है कि हाउ वी बिल्ड अप अवर ओन कंट्री, यू नो. अब सिंगापुर छोटा सा मुल्क है लेकिन इकोनॉमिकली इट इज़ अ हैवी वेट, यू नो. तो ये इस वक्त हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंडिकेशन और इंडिकेटर्स आर सच कि हमारी वो वैल्यू नहीं है जो इंडिया की है. कुछ तो इंडिया की अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ भी है, पॉपुलेशन है, एरिया है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, इट इज ऑल देयर. आपका जो कहना था तो वाकई ये तो एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए मीडिया का और द एजेंसीज का, और उनको पूरा ब्रीफिंग करनी चाहिए, बल्कि आई डोंट बिलीव के गाइडलाइंस देनी चाहिए, बट उनको फैक्ट्स जो हैं सारे दिखाइए. बट ऑफ कोर्स यू नो मीडिया भी कोई आजकल वो न्यूट्रल
and it's not expected to be neutral. हर country जो है वो मीडिया को यूज करता है to peddle its own narrative. Narrative कुछ पास पर पूरा सही भी होता है, पास पर नहीं भी सही होता. तो वो तो it is a arm of the state, now media. चाहे आप most democratic countries को भी ले लें, उनमें भी जब जाएंगे तो आखिर में यही होगा कि media has been used, to promote one's own interests. तो लेकिन ये मैं आपसे एग्री करूंगा कि इतना म्यूचुअल ट्रस्ट दोनों साइड में होना चाहिए और उनको टाइमली ब्रीफिंग हो. और मेरे को फॉरेन ऑफिस करता है वीकली, नहीं करता है. सर आप न्यूट्रल पे बड़ा खूबसूरत मुस्कुराए हैं सर आप. Sir, thank you very much. I think we are running short of time, so we'll have to end this session here. I would thank Ambassador Khalid Mahmood for his insight on our dynamics of our foreign policy, and thank all the participants who actively participated and raised questions. We'll just take 5 minutes to readjust for the closing ceremony. So we will have a 5 minutes break, and I'll let you know how this ceremony will be conducted. Thank you very much. क्या? हाँ? जी, हेलो. हाँ जी. Will do. नाम बताइए. कर लेते हैं. Thank you. Thank you. अच्छा, एक मुझे हाँ. नहीं, अभी प्लीज जरा मुझे सुनते जाइए. अभी जो लास्ट सेशन है ऐसे होगा कि हम सबसे पहले उस तरह बैठ जाएंगे और प्रोग्राम आपके पास है. इसमें सबसे पहले DGISI जो है ना वो एक ओवरव्यू देंगे. ISSI इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी स्टडीज. बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट ना निकालें, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. अच्छा, इसमें होगा ये कि हम जब ये करेंगे तो चीफ गेस्ट विल कम, और फिर ये होगा कि जो नाम बोलते जाएंगे आपने इस तरफ से आना है और ऐसे चले जाना है ताकि लोग आपस में टकराए नहीं. मतलब इस तरफ से आना है तो आपने इस तरफ से आके इस तरफ से चले जाना है. अच्छा, उसके बीच में जब एम्बेसडर एजाज बोल चुके होंगे तो फिर अगर वो सेक्रेटरी आ जाती हैं तो शी आल्सो मेक कंक्लूडिंग कमेंट्स करेंगी. उसके बाद ये सेरेमनी शुरू हो जाएगी. सेरेमनी के बाद फिर विल हैव लंच. तो आप अभी सेटल डाउन हो जाएं ताकि हम शुरू करें.
Bismillahirrahmanirrahim. To begin with the concluding session of the 2 days workshop, I would first of all like to invite Ambassador Azad Ahmed Chaudhry for overview of what we discussed in last 2 days.
Most of you know Ambassador Azad Chaudhry, but I would just introduce him. Ambassador Azad Chaudhry has served as a member of Foreign Service for 37 years, rising to the rank of Foreign Secretary of Pakistan for over 3 years from December 2013 to 2017. Mr. Chaudhry's last diplomatic assignment was as Ambassador of Pakistan to United States of America. His recent book, Diplomatic Footprints, is fast becoming bestseller in Pakistan and abroad. Sir, over to you, please. Thank you, Talat, and I must congratulate you and all the directors for interacting with various reporters on such an important topic. And of course, our thanks also to Ministry of Information, Press Information Department for facilitating that. मैं अभी आखिरी सेशन में सुन रहा था जी, मैं लाहौर आया हुआ था, एक आज मेरा लेक्चर था इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस विद इंडिया, ये सीनियर मैनेजमेंट कॉलेज था, और कल था पाकिस्तान रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स, वो नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज में था। और नेचुरली जो सवाल अभी आप यहाँ कर रहे थे आखिरी सेशन में जो मैंने सुना, बाय एंड लार्ज वो सवाल सबके जहनों में हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इशूज, पाकिस्तान के कौमी मफाद, नेशनल इंटरेस्ट, ये हम कैसे प्रायोरिटाइज करें और कैसे इसको आगे डिफाइन करें। और अभी में आप में से एक ने किसी ने ये भी कहा कि हमें पहले तो अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि हम प्रायोरिटाइज इसको कैसे करें कि हम ये देख सकें। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने बात कही। उसकी वजह ये कि अगर आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को सही तरीके से डिफाइन नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। आज हमने इतने सालों के बाद नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में ये तय किया कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी सबसे ज्यादा अहम है। हमें क्यों इतनी देर लगी इस मकाम तक पहुंचने के लिए? ये तो एक ऐसी हकीकत थी जो हर तरफ नजर आ रही थी। आप ये देखें, हिंदुस्तान की मिसाल लें, हमारा मशरकी हमसाया 40 साल तक, 1947 से लेकर 1991 तक ये वही हिंदुस्तान था, उतनी बड़ा ये मुल्क था, लेकिन इसको वो पजीराई दुनिया में नहीं मिलती थी। जब ये वहां पे इकोनॉमिक ओपननेस आई और 7-8% ग्रोथ रेट चला मुसलसल 20-25 साल, तो उसका काट ऊंचा हो गया। यही चीन का हाल है। चीन के अंदर भी जब डेंग जियाओपिंग ने सिमत बदली और उन्होंने अपनी इक्तिसादी प्रायोरिटीज को तरजीहात को आगे किया, तो आपने देखा कि वो भी एक कुव्वत कहलाई। तो हमें, मेरा तो ये ख्याल है कि सोशियो इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हमारा कौमी मफाद होना चाहिए। यानी पाकिस्तान के अवाम की समाजी तरक्की और उनकी इक्तिसादी तरक्की हमारा मफाद है, और खारजा पॉलिसी भी और सिक्योरिटी पॉलिसीज भी उसी के ताबे होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमारे लिए मसाइल जारी रहेंगे। और दुनिया सारी करती है, मैं आपको बताऊं, जो रिपोर्टिंग भी करते हैं, मैं आजाद जो कहते हैं अपने आप को कि हमारा प्रेस बड़ा आजाद है, न्यूयॉर्क टाइम्स में 6-6.5 साल मैं जब न्यूयॉर्क में रहा, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स लेता था, हर रोज वो अखबार आता था और मैं देखता था कि फ्रंट पेज पे 4 या 5 खबरें होती थी मैक्सिमम, लेकिन उनमें से जरूर एक चीन के बारे में होती थी, ऐसी खबर कि जिसके कोई नेगेटिव रेपरकशन निकलती। क्यों? क्योंकि वहां पे उनका ये ख्याल उस वक्त से था कि चीन हमारा असल राइवल बनेगा, तो उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट में मीडिया ने उनका साथ दिया। हिंदुस्तान को देख लीजिए, अब हिंदुस्तान में भी उनको पता है कि जी पाकिस्तान के साथ झगड़ा है, तो ऐसी कोई भी खबर जो पाकिस्तान से मुतालिक मुस्बत हो नहीं लगेगी, मनफी हो जरूर लगेगी। अब आपने देखा नरेंद्र मोदी साहब ने सितंबर 2016 में क्लेम किया, सिर्फ दावा किया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान के खिलाफ, की कोई नहीं थी, लेकिन कोई शोर होगा उनके मीडिया ने नहीं किया, ना उनकी अवाम ने किया। जबकि एक्चुअली आप देखा है तो वो एक बहुत बड़ा यानी बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की थी। तो मकसद मेरा ये है कि मीडिया इवन आज़ाद मुल्कों में भी रिपोर्टिंग करते वक्त अपना कौमी मफाद जो है सामने रखते हैं, बशर्ते कि कौमी मफाद को सही तरीके से डिफाइन कर दिया जाए। अगर तो कौमी मफाद का मकसद ये है कि किसी का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, कोई नेशनल एजेंडा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अवाम की फलाह और बेहतरी है, तो जरूर करना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब पाकिस्तान को अपने तमाम हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, तजारत करनी चाहिए, बहुत सारे और ऐसे एवेन्यूज देखना चाहिए, सरमायाकारी लानी चाहिए ताकि पाकिस्तान में खुशहाली आ सके और उसी से खारजा पॉलिसी जो है हमारी दुरुस्त सिमत में चलेगी। मैंने देखा किसी ने ये पूछा कि हिंदुस्तान जो है वो डार्लिंग बन गया है वेस्ट का और हम नहीं है, तो आपको पता है कि कैसे बना? आपको तो नजर आ रहा है
क्योंकि अमेरिका ने एक चीन को अपना एक हरीफ बना लिया है और उसके लिए उसको इस इलाके में मदद चाहिए थी। उसने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाई और हिंदुस्तान उसमें एक उनकी कलीदी हैसियत इख्तियार कर गया। ये तो नहीं कि इंडिया में कुछ 4 चांद लग गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो भी वक्त था जब पाकिस्तान भी डार्लिंग था। 60s में, 80s में, 2000s में पाकिस्तान जब अमेरिका के साथ मफादात का उनके साथ चल रहा था तो आपने देखा कि हम भी डार्लिंग बने। तो असल चीज ये नहीं है कि आपने डार्लिंग बन के तो अपना क्या लेना और क्या गंवाना है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत सारी मौकों पर अफगान जिहाद में या वॉर ऑन टेरर में बहुत लूज भी किया है। इसलिए ये नहीं होती कि ये आप अगर डार्लिंग बन जाएंगे। आज हिंदुस्तान में उसी टिल्ट की वजह से इतना एम्बोल्डन हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कि वो एक ऐसे रास्ते पे चल निकले हैं जिससे कल को कोई पता नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर क्या कमोशन पेश, क्या मामला, क्या तलातुम आ जाए। क्योंकि आप जब कितने 100 मिलियन लोगों को खिलाफ कर देंगे मुल्क के, तो वो जो सेकुलरिज्म और प्लूरलिज्म का जो रास्ता इख्तियार किया गया था उससे आप जब हटेंगे तो उसकी अपनी कॉस्ट भी होगी। तो हमें तो ये देखना है सिर्फ कि पाकिस्तान को अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसा करना चाहिए और उसके लिए मीडिया रिपोर्टिंग बड़ी अहमियत की हामिल है। मैं अभी किसी ने जब बात की, मैं उससे भी बहुत इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी जो अथॉरिटीज हैं वो इंफॉर्मेशन को शट नहीं करना चाहिए, उनको देनी चाहिए इंफॉर्मेशन। क्योंकि अब ये प्रिज्यूम करना कि मीडिया जो है वो हमारे नुक्ते नज़र को, पाकिस्तान के नुक्ते नज़र पे, पाकिस्तान के बयानिए को, पाकिस्तान के नैरेटिव को ओन अप नहीं करेगा, ये गलत बात है। करेगा अगर आप उनके साथ उनका एक ट्रस्ट का रिश्ता बनाए, एतमाद का रिश्ता बनाए तो वो यकीनन करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की वर्कशॉप ज्यादा होनी चाहिए, हर थिंक टैंक में होनी चाहिए, एकेडमिया में भी होनी चाहिए, ताकि लोगों को जर्नलिज्म डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे मुस्तकबिल के जर्नलिस्ट तालीम हासिल कर रहे हैं, ताकि ये जो गैप है अथॉरिटीज के दरमियान और मीडिया के दरमियान, हमें कोई वो नहीं। मैं खुद स्पोक्समैन रहा हूँ जी 2013 में, मुझे याद है। और मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा दिन था कि रात को मैं सबके जवाब जो है SMS के जरिए, उस जमाने में ब्लैकबेरी थी, उसके जरिए या टेलीफोन कॉल्स रिटर्न ना करूँ। क्योंकि मुझे ये पता है कि ये पार्टनरशिप है, ये हम ऑब्जेक्टिव एक ही है, पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे में तो मिलकर ही काम करना होगा। अगर हमने ये समझा कि मीडिया सिर्फ हमारी गलतियां निशानदही करने के लिए बैठा हुआ है, तो उसमें भी क्या हर्ज है, कर दें ताकि हम फिर आइंदा दोबारा गलती ना करें। लेकिन अगर आपने कोई ठीक बात की है तो मीडिया उसकी तारीफ भी करेगा, ना भी करे तो कोई बात नहीं, आप तो पता होगा कि आप सही रास्ते पर हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मीडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है एग्जेक्टिव को चेक करने के लिए और एग्जेक्टिव को राह रास्त पे रखने के लिए। तो मैं हमेशा से इस बात का हामी रहा हूँ कि मीडिया के साथ एक एतमाद का रिश्ता बहाल करना चाहिए हमारी सारी अथॉरिटीज को। तो मुझे उम्मीद है कि इस किस्म की जो एक्सरसाइजेज हैं, जो मीडिया वर्कशॉप है, आपके यहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मेरे जानने वाले हैं। काश के मैं इस वक्त इस्लामाबाद में होता और आपसे खुद गुफ्तगू ज़ाहिरन वहाँ पे बैठ के करता। लेकिन उम्मीद है कि आपने इस वर्कशॉप को बेहतर पाया होगा और हमारा ये पार्टनरशिप जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बैक टू यू तलत। थैंक यू वेरी मच सर। सवाल तो नहीं है ना? काफी ओके। फॉर कंडक्ट ऑफ द certificate awarding ceremony, I hand over to Umme Farwa for the ceremony. Umme Farwa, idhar yaad. Hello. Thank you, sir. आपको थोड़ी सी जहमत हो। Ladies and gentlemen, and now I would request our chief guest to present the certificates to participants of the workshop. First, I would like to invite Jabir Niazi on the stage. Jabir Niazi. He's not here.
M Danial K Khan. ٹھیک ہے. ریما شوکت, سلما کوثر, سہیل مجید, حمزہ رحمان, ہلال احمد, اسد اللہ خان, شمائلہ اندلیب, نوید صدیقی, الماس حیدر نقوی, سید وقار علی شاہ, پرویش چودھری, صدیق جان, اوکے, فیصل رضا خان, محمد نوید, ہنا چودھری, عدنان حیدر, اکمل شہزاد گھمن, محمد اکرم خان, محمد اکرم خان, نیّر علی, عبدالستار زاہد, جمشید سلطان, رضا خان, حسنین حامد, حسین تھیبو, نوید اکبر,
Farhan Ali. Naeem Mehboob. Zahid Farooq Malik. Rihan Ali. Wasim Qadri. Laila Kazmi. Sayyid Awadur Rahman. Rizwan Yusuf. Saftar Muhammad. Sumaira Khan. Fozia Noreen. Now I request the chief guests to give mementos to the guest speakers of the workshop. First, I would like to invite Ms. Amina Khan, Director, Kemia, ISSI. Dr. Neelam Nigar, Director, Center of Strategic Perspectives, ISSI. Amir Zia. Amir Jahangir. Dr. Arshad Ali, Director, India Study Center. Malik Qasim Mustafa. Malik Qasim Mustafa, Director, ACDC. Ambassador Khalid Mahmood, Chairman, BOG, ISSI. Dr. Talal Shabir, Director, China-Pakistan Study Center. And now I would like to request Chairman, BOG, ISSI to present a memento to the chief guest. Dr. Talat will receive the memento.
तमाम पार्टिसिपेंट्स आगे आ जाएं, यहाँ पे ग्रुप फोटो कर लेते हैं और उसके बाद लंच होगा। प्लीज ग्रुप फोटो के लिए सारे आगे आ जाएं।